प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। अज असी 4 नवंबर 2020 है और साडे प्रभु ने बड़ी महान किरपा दे नाल अज का दिन उसने फिर साडी जिंदगी विच दे दिता है। और ये दिन और साडी जिंदगी प्रभु के हत्थों में है, क्योंकि वही है जिहड़ा सानू साडी जिंदगी विच दिन और रात और हफ्ते महीने साल देता है। मेरे अजीजो, अज मत्ती दी अंजील है साडे कोल और उसका 25 अध्याय है, पहलियां आयतां हैं। और इस मत्ती दी अंजील के 25 अध्याय के अंदर असी कह सकते हाँ कि जगाउण का वेला सानू नज़र आ रहा है। जगाउण का वेला, क्योंकि लोग सौ रहे ने, इस करके जगाउण का एक वेला है। और वो जगाउण का वेला जिहड़ा है वो असल दे नाल लिखतां विच है, लिखतां दे अंदर है। इस करके आओ असी जगाउण दे वेले नूं जद साडे इस पीढ़ी दे कोल एक समा है कि वो वचन दीयां लिखतां नूं लै के उन्हां पाइयां पैणां दे कोल जाया जाए जिहड़े इन्हां लिखतां तो अनजान हन। ये जगाउण दा वेला है। लिखत कहती है, उस वेले स्वर्ग दा राज 10 कुवारियां वर्गा होवेगा, जिहड़ियां अपनियां मसालां लैके लाड़े दे मिलनों निकलियां। और उन्हां विचों 5 तां मूर्ख अते 5 चातर सन। बहुत वारी इन्हां लिखतां नूं एवें कहानी जी लैके पेश किया गया, पर ये बहुमुल्लियां लिखतां हन। और मेरे अजीजो, असल विच 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जिहड़ा वचन दे प्रकाश नूं लैना नहीं चाहुंदा, और एक ऐसा ग्रुप है जिहड़ा वचन दे प्रकाश नूं लैके आनंद हुंदा है। वचन दा प्रकाश जिहड़ा है वो असीं देखदे हां कि जिस तरह तेल दे अंदर प्रकाश हुंदा है और तेल दे अंदर उस तेल नूं लैके किसी दीवे विच पा के और उसनूं एक रूह दी वट्टी लैके और जद वट्टी नूं रूह दी वट्टी नूं अग लाई जाती है और दीवा जगना शुरू हुंदा है। जाने के प्रकाश जिहड़ा है वो तेल दे विचों तां नूं आउणा शुरू हो जाता है। इस जगाउण नूं मिसाल भी आख्या गया है और बत्तियां भी आख्या गया है, पर अज दा संदेश है जगाउण। तो वचन च लिखा है कि ये 10 कुवारियां ने, 5 मूर्ख ने और 5 चातिर ने। प्रभु बहुत वड्डी किरपा दवे। जेड़ियां मूर्ख ने, वचन ने कहा, मैं नहीं कहता, मैं किसी नूं कह नहीं सकता, वचन कहता है। जेड़ियां मूर्ख ने उन्होंने मिसालां ते लै लईयां, पर कुप्पियां विच तेल नहीं लिया गया।
ਕੁੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਔਰ ਕੁੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਨੇੜੇ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਦੂਰ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਤੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁल्हा ਦੇਰ ਲਾ ਦਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੁल्हा ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁल्हे ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਗਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੁੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਲਾੜੇ ਨੇ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਊਂਘ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਹੰਗਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਔਰ ਸੌਂ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪਈ, ਉਹ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪਈ, ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਬੁਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬੁਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੁਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਔਰ ਕੁੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੁਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗਣ ਡੈ ਪਈਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਥੁੜ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁल्हा
आ गया है और ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ है। मेरे अजीजो, डोला आ गया है, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ निकलना है। तो प्रभु बहुत ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਵੇ। ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ वचन 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ दौड़ के तेल लैन गईयां। ਇਹ ਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨਾ। ਐਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਲਾ ਦੇਰ ਲਾ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਬੁਝ ਜਾਏ, ਬੁਝਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। और प्रभु यीशु मसीह ने वचन विच कहा है, जागदे अते प्रार्थना करदे रहो भई तुसी परतावे विच ना पै जाओ। तो हुण असीं देखते हाँ परतावा अध विच ये जिहड़ियां 5 परतावे विच पै गईयां ने, ये हथ पैर मार रहीआं ने भई दुल्हा आ गया है, तेल लैन चलो। जब तेल मिलिया नहीं, वो नहीं मिलिया क्योंकि दुल्हा आ गया। तेल नहीं मिलिया और मिसालां नहीं जगियां और ਜਿਹੜੀਆਂ तैयार सन ਉਹ दुल्हे दे नाल फाटक दे अंदर जा वड़ियां क्योंकि उन्हां दियां मिसालां जाग रहीआं सन। इस करके यीशु मसीह ने कहा, जागदे अते प्रार्थना करदे रहो भई तुसी परतावे विच ना पै जाओ। अज लोग परतावे विच पै चुके ने। लिखतां दी साडी दुआ है कि प्रभु दे हुक्म दी पालना हो जावे, जागते रहिए और वचन जो प्रकाश है असी देखते हैं उहदे चानने विच चलते रहिए। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत होवे। बाइबल के अंदर एक ऐसी किताब है जो आखिरली किताब है और उसनों प्रकाश दी पोथी आख्या जांदा है। असी वेखदे हां कि इन्हां दिनां दे अंदर कोई भी उस पोथी नूं हाथ ला के नहीं मतलब चाहुंदा क्योंकि उन्हां दी गल ये समझ विच आ नहीं रही। जद कि असीं खुलियां होईयां मोहरां दे दिनां दे विच हां, जद कि 7 सितारियां दे दिनां विच हां और 6 सितारे 6 दूत जिहड़े ने वो हो चुके ने और 7वां सितारा जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ मैं और तुसी हाँ। 6 कलीसियावां बीत चुकियां ने और 7वीं कलीसिया जिसनों लौदीकिया दा युग आख्या जाता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि ਭਾਵੇਂ ਇਹ 7ਵੀਂ कलीसिया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹਦਾ मतलब है, जे नां दा मतलब है
आपो अपनी मर्जी। तो अजीजों, मेरी प्रार्थना है कि आओ वेला रह नहीं गया, दुल्हा आउण वाला है और असी अपनी अपनी मर्जी ना करिए। जो कुछ खुदा दे वचन ने सानू क्या है, सानू उहदे पिछे हो लेना चाहिए। तो असी प्रभु दे वचन नू वेखदे हां कि जद ये पिलर ऑफ फायर जाने कि अग दा खंभा ईदे 35 दे दिन जदों यरूशलेम दे विच एक थां इकट्ठे सन और उन्हां नूं क्या होया सी, भाई तुसी उन्ना चिर यरूशलेम तो बाहर नहीं जाना जब तक तुसी ऊपरों शक्ति नहीं पा लेंदे। और उत्थे बैठे हुए सन, वो हुक्म दे बद्धे हुए सन, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्होंने मुर्दियां विचों जी उठ के पैगाम दिता सी। और मुर्दियां विचों जी उठ के उसने रसूलां दे करतब पहले बाब की 3 और 4 आयत विच मैं तुहानू लैके जा रहा हाँ। लिखत कहती है, उसने अपने दुख भोगन दे मगरों अपने आप नूं उन्हां उत्ते जिउंदा प्रगट कीता और उन्हां नूं कहा, तुसी उन्हां चिर यरूशलेम तो बाहर नहीं जाना जद तक तुसी ऊपरों शक्ति पा ना लो। वो बैठे हुए सन, वो 10 दिन तक बैठे रहे सन। वो प्रभु दे वचन की कदर कर रहे सन, उहदे हुक्म की पालना कर रहे सन। और असी जो वचन की पालना करनी जिहड़ी है वो बड़ी मुबारक है। और वचन कहता है, रसूलां दे करतब पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत उत्थे लिखत कहती है, जहां पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा फिर तुसी शक्ति पाओगे और फिर तुसी यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया सगों धरती दे बन्नियां तक मेरे गवाह होवोगी। ये हन वो लोग जिन्हां ने लोकां नूं जगाया है, जिन्हां दे कोल खुदा दा वचन सी और वचन दे आग्याकार सन। अज बाइबल पई रहिंदी है, जिथे पई होवे रहिंदी आ, कोई उन्हों पढ़न दे लई तैयार नहीं है। मैं दुख दे नाल इह गल कहंदा, क्योंकि समा उत्तों दी लंघदा जांदा, बाइबल की कोई कदर नहीं। बस इधर भज गए, उधर भज गए, उधर भज गए। ठीक है जी, जो तुसी भज नस सकते हो, पर जद तक वचन पढ़िया नहीं जाता और उहदी समझ और उहदे मतलब उहदे वेखण और उहदे लिखतां नूं समझण दी बुद्ध नहीं है, तद तक कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा, जे किसी नूं बुद्ध दा घाटा होवे तां ओह मंगे और मैं खुले दिल उसनूं दे दियांगा। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। हुण तेल मंगण जा रहीआं ने और तेल वालियां दुकानां
बंद हो चुकियां ने और तेल नहीं मिलिया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, मैं लिखत पढ़नी चाहता हाँ। और लिखत कहती है कि अद्धी रात नूं धुम पई और लाड़ा आया, ਉਹਦੇ मिलण नूं निकलो। तद उन्हां सबना कुवारियां ने उठ के अपनियां मिसालां तैयार कीतियां ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਚਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि अपने तेल विचों कुछ सानू दिओ, क्यों जो साडियां मिसालां बुझदियां जा रहीआं हन, बुझदियां जांदियां हन। पर चतरां ने उत्तर दिता, ना किते साडे अते तुहाडे लई थोड़ ना जावे, पर तुसीं वेचण वालियां दे कोल जाओ और जाके अपने लिए मुल लैके आओ। ऐसी वेला हफड़ा दफड़ी दा, लोकां नूं जद प्रभु आएगा हफड़ा दफड़ी पई होवेगी, वचन दी समझ नहीं रहेगी। और याद रखो वो वचन नूं लभदे फिरनगे, वचन सुनाउण वालियां नूं लभदे फिरनगे, पर ਉਹ ਤੇ ਦੁਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और उस समय की कदर नहीं की जा रही। मेरे अजीजो, मैं तुहाडे नाल इत्थे वचन दे विचों गल्लां कर रहा हाँ। और लिखत 10 कहती है, अते जद वो मुल लैण गईयां लाड़ा आ पहुंचा, अते जिहड़ियां तैयार सन वो लाड़े दे नाल ब्याह विच जा वड़ियां अते बूआ मार दिता गया, बूआ मार दिता गया। और जदों दरवाजा बंद हो गया, कौन उस दरवाजे विच वड़ सकेगा, कौन उस दरवाजे विच जा सकेगा, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया है। और जी उड़ीक सी वो लाड़ा है और वो साडा खुदाबंद यीशु मसीह। और जदों असी लिखत पढ़ते हाँ ते लिखत प्रकाश 19 दी 7 आयत कहती है कि मैं पढ़ के दसना चाहता हाँ, कई बारी गलतियां हो जांदियां ने और गलतियां फिर मुश्किल च पा देंदियां ने अजीजो। इस करके मैं तुहाडे कोलों तुहाडे नाल लिखत विच जाना चाहता। लिखत कहती है, आओ असीं आनंद करिए अते निहाल होइए अते ओदी वडियाई करिए, लेले दा ब्याह जो आ गया है अते ओदी लाड़ी ने अपने आप नूं तैयार कर लिया है। मेरा जीजो, जिन्हां दी सोच लंबी सी उन्हां दे कोल मिसाल सी, मिसाल जाग रही सी। इन्हां पंजां ने अपनियां मिसालां जगा लईयां, दूसरियां नूं तेल नहीं मिल रहा और जिहड़ियां तैयार ने वो दुल्हे दे नाल यीशु राजे दे नाल ओ फाटक दे अंदर चले गईयां।
और जदों अंदर चले गईयां अते बूआ की कर दिता गया, मार दिता गया, बूआ मार दिता गया। और मगरों ये भी कह रही हन साडे लिए बूआ खोलो, और अंदरों आवाज़ आती है, मैं तुहानू नहीं जानता जो तुसी कौन हो, मैं तुहानू नहीं जानता जो तुसी कौन हो। क्योंकि उन्होंने अपने समय के अंदर बाइबल का आदर नहीं किया, उन्होंने अपने समय के अंदर इस वचन को कबूल नहीं किया, और इस वचन का उन्होंने आदर नहीं किया। इस करके अजी जो दरवाजा बंद है, अंदरों आवाज आ रही है, मैं तुहानू नहीं जानता तुसी कौन हो। इसे करके असी देखते हैं कि अज दे दिनां दे अंदर केड़ी गल है। मैं मत्ती 7 के अंदर तुहानू लैके जाना चाहता, 21 के अंदर, मत्ती 7:21 के अंदर तुहानू लैके जाना चाहता हाँ। अब मैनू बहुत अच्छा लगता है अपने भरावां भैणां बजुर्गां दे वास्ते, जवान बच्चों वास्ते वचन नू पेश करना बेहद जरूरी है। और इत्थे लिखत कह रही है 7:21, हर एक जेड़ा मैनू, हे प्रभु, हर एक जेड़ा मैनू प्रभु प्रभु कहता है, स्वर्ग दे राज विच लिखा ना हरेक जेड़ा मैनू प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग दे राज विच वड़ेगा, बल्कि ओ जो मेरे स्वर्गी पिता दी मर्जी दे उत्ते चलदा है ओ स्वर्ग विच वड़ेगा। सो पिता दी मर्जी खुदा दा जिउंदा वचन है। और जे इनू पढ़िया नहीं गया, इनू सुनिया नहीं गया, इहदे उत्ते विश्वास नहीं किया गया, तो फिर किस तरह असी अगे चले जावांगे। मेरे अजीजो, लिखा है बल्कि ओ आखणगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। उस दिन अनेक मैनू आखणगे, हे प्रभु, हे प्रभु, कि असां तेरा नाम लैके अगम वाक नहीं किया, तेरा नाम लैके भूत नहीं कढे, तेरा नाम लैके बहुतियां करामातां नहीं कीतियां। तद मैं उन्होंने साफ आखांगा, भाई मैं तुहानू कदे भी नहीं जानिया, ही बरियारो मेरे कोलों चले जाओ। असी देखते हाँ ये सब इस तरह दियां करामातां गम बात उत्ते भरोसा रख रहे ने, और भूत कढ़ण उत्ते भरोसा रख रहे ने, पर जब दुल्हा आ रहा है तो उहदे उत्ते विश्वास नहीं है, उहदे उत्ते विश्वास नहीं है। साडा प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते दृढ़ विश्वास होना चाहिए है, जिवें उन्हां होशियार कुवारियां दा विश्वास सी। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत दवे। दरवाजा बंद होन वाला है, और दूल्हा जो साडा खुदाबंद यीशु मसीह है वो आ जान वाला है। आओ
ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਗਾਉਣਾ। ਕੌਣ ਜਗਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁल्हा ਆਇਆ, ਦੁल्हा ਆਇਆ, ਦੁल्हा ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁल्हा ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਈ ਮਸੀਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੁल्हे ਦਾ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜੀਜੂ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਐਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਗਾਉਣਾ, ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਦੇ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਔਰ ਸੁਣ ਸਕਣ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।